हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, an American poet, is the poet of this poem Fire and Ice. He was born on 26 March 1874 at San Francisco in California, USA. My Butterfly, an elegy, his first poem, which was published in 1894. He wrote many poems as The Road Not Taken, Birches, Fire and Ice, Stopping by Boats on a Snowy Evening, Mending Wall, and Home Burial. He was awarded Congress Gold Medal in 1960. He got for Pulitzer Prize for Poetry. He died on 29 January 1963 at Boston. Next, we know about the poem. Main point of the poem is the poet refers the two predictions that have been made on how the world will end. He equates fire with desire. He equates ice with hates. He says that hatred in the heart of people towards their fellow human beings will also result in the end of the world. So, he says that this world is full of desire and hatred. Either of these will ultimately cause of the destruction of the earth. Next, object of the poem. There are two objects of the poem, fire and ice. Fire is the symbol of desire and ice is the symbol of hatred. Students, there are 15 MCQ we are going to cover in this video. First, who is the poet of the poem Fire and Ice? फायर और आइस का पोइट कौन है? ऑप्शन ए लेजली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन कैलिन. करेक्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट, what does the poet compare with fire? Hatred, desire, hot, both A and B. The poet compares with fire, desire. Option B is correct. Option B is correct. Desire. Next, what is the meaning of Paris? Option A bloom, option B rise, C die, D glow. Option C is correct, die. Next, what would suffice if the bird were to perish twice? Option A ice, option B fire, option C hatred, option D both A and B. Option D is correct. The bird were to perish twice, both A and B, fire and ice. Next, what would be better option to end the earth? Option A ice, B fire,
both are equally competent. D, none. Option C is correct. Both are equally competent. Ice and fire are equally competent. Next, question number 6. What is the rhyming scheme of the poem? Students, rhyming scheme means लय योजना. पोयम की लय योजना क्या है? ए बी ए ए, बी सी बी सी बी, ए बी ए, बी सी बी सी बी, ए बी, बी सी बी सी बी, ए बी, बी सी बी सी बी. The rhyming scheme of the poem is A. Option A is correct. A B A, B C B C B. Next, name the poetic device used in the line I hold with those who favor fire. Assonance, B alliteration, C none, D both. Correct option is D. Assonance, alliteration, both are correct. Option D is correct, both. Next, question number 8. Name the poetic device used in the line some say the world will end in the fire. Student, poetic device means figure of speech. पोयम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? मेटाफोर, इमेजरी, सिमिली, ऑक्सीमोरन. करेक्ट ऑप्शन इज बी, इमेजरी. नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट destruction ice is also great. सेकेंड स्टंजा में है ये लाइन. ऑप्शन ए मेटाफोर, बी इमेजरी, सी एलिट्रेशन, डी ऑक्सीमोन. सही ऑप्शन बी, इमेजरी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट हैज पोइट यूज्ड पर्सनिफिकेशन? वेयर हैज, यानी कि कवि ने मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ यूज किया है? ए फायर, बी आइस, सी अर्थ, डी बोथ ए एंड बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फायर इज symbol of desire and ice is symbol of hatred. In those options, the poet has used personification. Next, why do some people say that the world will end in ice? कुछ लोग क्यों कहते हैं कि संसार बर्फ में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच प्रेम तेजी से बढ़ रहा है. बिकॉज हैट्रिड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच घृणा तेजी से बढ़ रही है. बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच जो लस्ट है, तीव्र इच्छा, वो तेजी से बढ़ रही है. नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज वी, बिकॉज हैट्रिड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट. लोगों के बीच जो घृणा की भावना है वो तेजी से बढ़ रही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफाइस? सफाइस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए
बी सफिशिएंट, बी डिफरेंट, सी बी एरोगेंट, अरेंजमेंट लिखा हुआ है, ये एरोगेंट है शब्द, बी एरोगेंट, डी बी मैग्निफिसेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सफिशिएंट, बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना, एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ। बर्फ किसका प्रतीक है? लस्ट, लव, डिजायर, हेट्रेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेट्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ। अग्नि किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ। ए, लव एंड न्यू डिजायर, बी, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, सी, लव एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग, डी, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर द फायर। कवि उनके साथ क्यों चिपका हुआ है जो फायर का समर्थन करते हैं? कवि उनके साथ क्यों है जो फायर का समर्थन करते हैं? होल्ड मीन्स रुका हुआ, स्टिक टू चिपका हुआ। ऑप्शन ए, बिकॉज लव अमंग पीपल इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच प्रेम तेजी से बढ़ रहा है। हेट्रेट अमंग पीपल इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच घृणा तेजी से बढ़ रही है। द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच जो लालसा है भौतिक वस्तुओं को पाने की वो तेजी से बढ़ रही है। डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोगों के बीच जो लस्ट है मटेरियल थिंग्स के प्रति वो तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार देयर आर 15 MCQ in this video. I hope you will be understood properly. यदि आपने इस वीडियो को ठीक से समझा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।